word be a word of gratitude. I feel grateful to our beloved brother Mr. Bahari B.R. Malhotra and to Dr. Patil for having called me here and given me an opportunity of associating myself with a function which I value highly. They both are persons with rich, creative minds, beautiful, compassionate hearts, and a radiant simplicity. From time to time, Mr. Malhotra organizes such beautiful functions. They are so educative, entertaining, and they teach us so much. I feel grateful to him. I feel grateful to Principal Karan for the beautiful words that he spoke a little while ago. I feel grateful to every one of you who have spared your precious time, come here to give us the blessings of your brave, beautiful hearts. Several years ago, I visited a house. The mother took me round the house and then she came and paused near a bed on which lay two children. Pointing to the two children, she said, "They are our true wealth. They are our true treasure. They are our Kohinoor diamonds." How true it is that the children are the true wealth of a family, of a community, of a society, even of a nation. I recall the words which Gurudev Sadhu Vaswani spoke on one occasion. He was addressing a meeting of wealthy bankers when he said to them, "You are busy gathering silver and gold, but you have neglected your richest treasure. Your richest treasure are your children." The children are the richest treasure. My friends, you work very hard as you can, with a view to earn as much money as you can, so that your children are well looked after. But in spite of it, there are so many children who are not happy. They are unhappy. What is the reason? What is the cause? What is happening to us today? What is happening all around us? Peer pressure is growing. Generation gap is widening. Reverence for elders is dwindling. What is the cause and what is the cure? In the little time that is given to me, I would wish to pass on to you a few practical suggestions on how to build a happy family, a family whose members love each other, respect each other, a family of which the members understand each other and they live in harmony with each other. Practical suggestion number 1. What is it? Let parents carry their children around when the children are infants. The infants need the touch of their parents. The parents should touch them. The parents should tickle them. The parents should baby talk to them.
The parents should run around with the toddlers. The parents should play hide and seek with them. The parents should spend holidays with them. The parents should teach them computer skills. The parents should give them quality time. There was a little boy, it was his 8th birthday. The father was a very wealthy man, and the father said to the child, "Tell me what it is that you want. I shall get it for you." And the little boy, 8 years or 9 years old, the little boy said to the father, "Father, you have given us everything that we need. You have left nothing which we need. You have given us everything that we need. But there is one thing that we want from you, and that is, give us a little time. Give us a little time." In a day and night cycle, God gives us 24 hours. Out of these 24 hours, if you give us half an hour every day or 1 hour every day, we would feel blessed. The children want your time. The children want your attention. The children feel neglected if you don't give time to them. There is a child, every time that he goes to his father with a question, the father says to him, "Not now, my child, come a little later." And that later never happens. What the children need is time and attention from their parents. And practical suggestion number two is, give each child individual attention. There was a teacher, she gave a sentence completion exercise to the students. To the students she said, "I am giving you a few words, you complete the sentence." And what were the few words? The few words were, "My happiness consists in," then the blanks, dash, 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 dash. The children had to write what they thought was their true happiness. And a little girl, 10 years old, Savitri was her name, Savitri wrote, "My happiness consists in walking on the seashore with mom on one side and daddy on the other. Only the three of us, with no one else to interrupt us." This is what the children need. This is what the children want. And this is what the parents are not able to give to them. That is why the generation gap is widening. In our days there was no generation. I never heard the word generation gap when we were in the school or the college. The peer pressure is mounting. As I said, we never heard of peer pressure in our days. Respect for the elders is diminishing. Why? Because the parents are not able to give time and attention to their children. Practical suggestion number 3, example speaks louder than words. There was a little one. He met me and he said to me, "My father always tells me, whenever my father meets me, he tells me, you must speak the truth. You must speak the truth. You must speak the truth." But on last Sunday, a man came and knocked on the door. I opened the door and there stood a man who had come from the bank. He asked me, "Is your father in? I want to meet your father."
And the little boy said to him, I'll go and find out if my father is in. He went to his father's bedroom and found that the father was there. And he reported to him that the man from the bank has come. He wants to meet you. The father immediately told him, tell him that I am not in. I've gone out. The boy said, I found myself in a dilemma. On the one hand, my father always told me to speak the truth, and now he's telling me to speak something which is not the truth. So he solved the problem. He went and told the man from the bank that my father tells me to tell you that he is not in. This is the difficulty with the children. Example speaks more than words. And practical suggestion number 4. Every day, every member of the family, from the oldest to the youngest, they should meet together in a prayerful mood. The family that prays together stays together. You can pick up a thought, a great thought of a great one. You can pick up a shloka of the Bhagavad Gita. You can pick up a line from a scripture which is dear to you. And let every member of the family, every member, from the youngest to the oldest, give his reflections on the thought. I tell you, this will change the entire atmosphere of the school, of the house. The family that prays together stays together. And practical suggestion number 5. At every step in every round of life, we have to make choices. You should teach your children to make the right choice. At every step, in every round of life, as I said, we have to make a choice. The Rishi of the Upanishad says there are 2 things. Prayer, he calls them prayer and shreya. Prayer is pleasure. Prayer is that which gives you pleasure. Prayer is moving on the path of pleasure. It is a smooth path. It is a slippery path. It is a path that that needs no effort to walk on. But it is a path that will lead you to your doom. Shreya is the good path. It is a stony path. It is a thorny path. It is a path paved with flames. But it is a path that will ultimately lead you to your highest good. You must teach your children how to move on the Shreya path. This is the duty of every parent. But for this, you have to give time to your children. You have to give attention to your children. And practical suggestion number 6. In your treatment of children, you should not discriminate. You should have no favorite children. Children are a very sensitive type of creatures. You should make the children feel that you love them all. You give the same love to every one of your children. And practical suggestion number 7. So long as your child is small, say about 3 years old, you must keep him very close to you. Keep your child very, very close to you until he is 3 years old. In most families I've seen, they just hand over their
little children to ayahs. I think there is no greater blunder than that. Keep your child very close to you, at least till he is 3 years old. Do not hand him over to the ayah or to a babysitter. My time is traveling fast. Practical suggestion number 8. Teach your children to share the good things of life with those that are in need. Let the child grow in a spirit of sympathy and service, even while he is still young. It is said, so many gods, so many creeds, so many paths that wind and wind, and yet what the sad world needs is only how we can all be kind. Teach your children to be kind. My friends, we must never forget that the two centers of character building are the home and the school. The parents should be careful to see that children are given the right type of training in the home. There was a young man in France. He committed a heinous crime and he was sentenced to hard labor for 10 years. He turned around, he turned to the people who were present in the courthouse, and he shouted aloud so that everyone could hear what he said. He said, I have nothing against the judges, for they have only done their duty. I have nothing against the police, for they too have done their duty. However, I can never forgive two persons in this courtroom. They are my father and my mother. They are responsible for my present condition. They did not take care of me when I was young. They did not care of the company I moved in. They never bothered who my friends were. They did not object when I gambled. They did not prevent me from drinking and from visiting houses of ill fame. And here I am, full of vice, full of corruption, full of crime. The fault is not mine. The fault is my parents. But I have to pay the price. I have to go through 10 years of hard labor, and after I come out from jail, everybody will point fingers at me and say, here is a criminal. My friends, my time is almost over. I must bring my little talk to a close. There could be many other practical suggestions, but what parents must always remember is that children need their love above all else. The nature of the soul is love. Without love, no child can grow in the right way. Parents must give to their children quality time. Give them quality time. Give them attention, as I have repeatedly said. They must sow. Parents must sow in the plastic hearts of children seeds of character, without which life can have no meaning, without which life can have no value. Parents must help their children to grow in the love and the fear of God, and in the loving service of all that God has created, nature, environment, creatures that breathe the breath of life. Parents must never forget that children
want love and attention and time from their parents, not just toys and chocolates and gifts and dresses and money. I thank you for your patient hearing. Om Shanti, Shanti, Shanti. Honorable Chief Guest Ramesh Dev. Ramesh Dev was born on 30th of January 1929 and is an Indian film and television actor who has worked in more than 285 Hindi films. Ramesh Dev was born on 30th January 1925 and is an Indian film and television actor who has worked in more than 285 Hindi films, 190 Marathi films, 30 Marathi dramas, and with over 200 shows in his long career. He has also produced feature films, television serials, over 250 advertised films. He has also directed number of films, commercial films. He has enjoyed 50 years of very successful and very happy married life. He started his film career from Kolhapur in Marathi film industry. His 69 years of continuous presence in Indian Bollywood film industry, highest ever achieved by any film actor or actress in the history of India. He has been felicitated with many state and national awards for his extraordinary work. Prominent and recent among them is the January 2013 award for lifetime achievement given on 11th of January, Pune International Film Festival. Shantaram Bapu Award for Best Actor, which was of rupees 4 lakhs cash. Hindi Director, Best Direction. This was chosen from 3 countries, China, Iran and Kuwait, known as Sane Guruji Award. Then Cannes Gold Lion Award for his son Abhinay Dev, Gold Eagle from London and Gold Pyramid from Cairo. These are the awards received by Abhinav Dev, the well-known film actor and son of Shri Ramesh Dev. Shri Ramesh Dev is directing 2 films. One is a College Junction and another one is a Wraith Mafia, Wraith, that is Sand Mafia. He is married to a noted actress Seema Dev, formerly known as Nalini Saraf. His 2 sons are Ajinkya Dev, noted Marathi actor, and Abhinav Dev, noted Indian film director. Ladies and gentlemen, I present to you the Honorable Shri Ramesh Dev. ओम गणपते नमः, ओम सरस्वते नमः, ओम जगदम्बे नमः, नमः नमः। आज एक मल्होत्रा साहब, बड़ी खुशी हुई मुझे। मैंने बहुत से कॉन्फ्रेंसेस देखे हैं, ज्वाइन भी किया है, काफ़ी लेक्चर्स भी दिए थे, लेकिन पहले बार मैंने देखा कि 4 धर्म के 4 धर्मगुरु यहाँ आके अपने अपनी बातें करते हैं, अपने अपने वहाँ की चीज़ें बोलते हैं, और ये मैंने कहीं नहीं देखा था। तो मल्होत्रा साहब, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका।
कि सर्व धर्म समभाव जो है वो यहाँ आपको दिखाई दिया हमें, और कोशिश करूँगा आगे कि मेरा कोई फंक्शन हो तो वहाँ ऐसी ये बात करने की कोशिश करूँगा। अब दूसरी एक बात बहुत बड़ी है कि जिसके वजह से मुझे डर लग रहा है। रियली स्पीकिंग, अंग्रेजी में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हिंदी में बात कर रहा हूँ। अंग्रेजी में बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपको तकलीफ न हो जाए कि मेरी अंग्रेजी इतनी हाई अंग्रेजी है कोल्हापुर यूनिवर्सिटी की कि जिसके वर्ड्स डिक्शनरी में भी आपको नहीं मिलेंगे, और आप खामखा नर्वस हो जाएंगे कि ये कौन सी भाषा बोल रहा है, कौन सा इतना अच्छा वर्ड बोला है। तो आपके लिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, मेरे लिए नहीं। खैर, दूसरी बात एक है, जब मैं मेरे दाएं तरफ देखता हूँ, एक से एक जायंट्स बैठे हैं। करार साहब है, मुजुमदार साहब है, मल्होत्रा साहब है, हमारे गुरु हैं जिनको मिलने की कोशिश में बहुत सालों से कर रहा था, वो आज इच्छा पूरी हो गई। थैंक यू मल्होत्रा साहब। उनके 4 लफ्ज़ सुनने को मुझे मिले, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन लोगों के सामने मैट्रिक नापास लड़का क्या बोल सकता है? मैं मैट्रिक पास भी नहीं हूं, फेल हूं। तो इन्होंने जो कहा कि हाँ आज इतने बातें कही, वो मैं कहने वाला था लेकिन उन्होंने सब कह दिया। मैंने ठीक है बोला। तो अब मैंने एक काम किया जो ऑनरेबल दादाजी ने बोला कि कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए। तो मैं सिर्फ मेरे जीवन के कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, इतने सालों की जो एक मैंने देखा है उसके बारे में। अपनी इंडियन कल्चर है, एक घर और चारों तरफ से सब बैठे, ये अपनी इंडियन कल्चर है अपना। ये इसी की वजह से इंडिया बहुत बढ़ गया आगे, भारत बढ़ गया। लेकिन धीरे धीरे से ये बिखरने लगा, एकत्र कुटुंब धीरे धीरे से बिखरने लगा। वजह एक ही था कि जो सबसे बड़े कुटुंब था, जो एकत्र कुटुंब वाले थे, तो वो अपने वाले छोटे से कुटुंब को दबाने की कोशिश करने लगे, और दबा दबा के इतना दबाया कि वो राजे बने, वो एक मैं कहता हूं कि डिक्टेटर बन गए। और इस वजह से धीरे धीरे से ये जो अपना कल्चर था एकत्र कुटुंब का, वो कल्चर बिखरने लगा। कल्चर बढ़ता है कैसे? एक छोटी सी बात मैं बताता हूं आपको, जो मेरे घर के में हुई थी। मैं जब छोटा सा था तब हम एकत्र कुटुंब में रहते थे। ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, पिताजी, माताजी, अंकल, उनके बच्चे, आंटी, मामा, ये सब देर अबाउट मेरे ख्याल से नहीं तो ये 28-29 लोग एकत्र रहते थे। वजह एक थी कि अपना देश जो है वो खेती प्रधान है। खेती प्रधान में जितने घर में ज़्यादा आदमी होते हैं उतने खेती में 4 पैसे ज़्यादा मिलते हैं। कोल्हापुर में हमारी बड़ी अच्छी की स्थिति थी, तो सब लोग हम काम करते थे, हम छोटे लोग बच्चे भी काम करते थे, पिताजी भी काम करते थे। जिस वक्त वो लॉ की स्टडी कर रहे थे उस वक्त भी आके खेत में वो काम करते थे, तो हमारी आमदनी बढ़ती थी। धीरे धीरे से ये हो गया कि पिताजी बम्बई निकल गए बैरिस्टर बनने की वजह से, मेरा बड़ा भाई मेजर बन गया, छोटा भाई पुलिस इंस्पेक्टर बन गया, और मैं इस ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली इस लाइन में आ गया।
लेकिन उस वक्त एक छोटेपन में एक देखा मैंने कि मेरे ग्रैंडफादर जब वहां बैठे रहते थे रात को, तो मेरे पिताजी जो बैरिस्टर थे वो आके पिताजी के पांव पड़ते थे कि मैं सोने जा रहा हूं पिताजी। उसके बाद मेरी माँ आती थी, उसके बाद अंकल आते थे। घर के एक एक आदमी हमारे ग्रैंडफादर के पांव में हाथ लगा के, पांव में हाथ लगा के कहते थे कि हम सोने के लिए जा रहा हूं। नेचुरली मैंने भी वही शुरू किया। दुर्भाग्य से, वैसे तो अमर तो कोई हो ही नहीं सकता। ग्रैंडफादर गए, पिताजी उस जगह पे बैठते रहे, तो पिताजी की तरफ हम सब लोग, मेरा भाई, मेरा सब कुछ, हम लोग पाँव पड़ते थे। उसके बाद पिताजी भी गए, उस जगह पे मैं आ गया। लेकिन मेरे बेटों ने ये सब परंपरा देखी थी कि जाने के पहले, रात को सोने के पहले, हाय गुड नाइट डैडी, ये कहना अच्छा नहीं है। पिताजी के पाँव पड़ के मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, ये कहना चाहिए। और आपको ताज्जुब लगेगा सर कि आज भी मेरा बेटा मेरे पाँव रात को पड़ता है, मेरी बहू मेरे पाँव पड़ती है, मेरा बड़ा बेटा पड़ता है, छोटा बेटा पाँव पड़ता है। इतना ही नहीं कि जब एक आधी फंक्शन होते रहता है घर में, जब एक आधी पार्टी होती है, उस वक्त मैं जल्दी सोने के लिए जाता हूँ। उसके जाने के पहले ये सब लोग पाँव पड़ते हैं। तो मेरे बड़े बेटे के एक दोस्त ने कहा कि अरे यार, तू इतना हाईली एजुकेटेड है, अमेरिका से जाके तूने कंप्यूटराइज किया है, और मैंने सुना है कि तेरा बाप यानी मैं मैट्रिक फेल है, तो मैट्रिक फेल वाले आदमी को तू पाँव कैसे पड़ता है? बोला ये मैट्रिक फेल और ये इसके लिए नहीं, वो मेरे पिताजी है इसलिए। और उनकी विद्वत्ता इतनी बड़ी है कि कितनी, ये कि उसके वजह से है। मेरे ग्रैंडफादर की एक चीज़ मैं बताता हूँ। ग्रैंडफादर हमारे कोल्हापुर में एक ऐसी शख्स थे कि जिनके लिए बहुत ही इज्जत थी। ये देखिए, हमारे घर के नज़दीक वाले घर में से सवेरे 5 बजे चिल्ला चिल्ली शुरू हो गई। औरत के रोने की आवाज़ सुनने, मुझे बचाओ मुझे बचाओ बचाओ चिल्ला रही। तो सब लोग, हम नेचुरली नज़दीक थे, तो उठ गए कि क्या हो रहा है। तो इतने में वो नज़दीक वाले आदमी ने अपने बहू को और दूसरे एक आदमी को उठा के खींच के लेके आए, और पिताजी से कहा, हमारे ग्रैंडफादर से कहा कि आप न्याय कीजिए, ये दोनों भी खराब, बहुत बुरे आदमी है। सवेरे 5 बजे गार्डन में हमको मिले। अब नेचुरली सवेरे 5 बजे दोनों यंग थे, गार्डन में मिले तो बुरा ही ख्याल आता है। तो वो लड़की कह रही थी कि नहीं नहीं, मैं दादाजी, मैं आपको पाँव पड़ के कहती हूँ, भगवान का नाम लेके कहती हूँ, जगदम्बा का नाम लेके कहती हूँ कि मैं पवित्र हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लकीली मैं सवेरे बाहर जा रही थी और ये आदमी संडास से बाहर आ रहा था और हमारे एक मैक के सामने आ गया, और उसी वक्त इसने देखा तो उनको लगा कि हमने बुरा काम किया। तो आप ही अभी क्या कीजिए। मेरे पिताजी भी उस वक्त वकील थे, सोचने लगे कि क्या अभी ये जो मामला है ये सुलझाया जाए कैसे। तो ग्रैंडफादर ने एक ही बोला, बोले बेटे इधर आ बेटे, जो आदमी को मारा था, काफ़ी मारा था उसे, इधर आ बेटे। और उसका हाथ उसने हाथ में लिया, बातें करते 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 नाक तक लेके गए, छोड़ दिया। बाद में उस लड़की को बुलाया, बोले इधर आ बेटी, और उसके साथ बातें करते करते उसके मुंह तक उसने अपना ये लेके गई, नज़दीक तक बात करने लगे।
और सब होने के बाद कहा कि ये दोनों भी निर्दोष है। जो ये लड़की कह रही है और जो आदमी कह रहा है कि मैं संडास से बाहर रहा था और ये बाहर अंदर जा रही थी और निर्दोष है, और मैं कहता हूँ निर्दोष है, इसका मतलब निर्दोष है। तो उन्होंने बोला कि कैसे कैसे, किस हालत से और कौन से प्रूफ है आपके पास? बोला प्रूफ एक ही है, मैंने उस आदमी का दायां हाथ सूंघ लिया। हंसे मत, सच्चाई है। सूंघ लिया तो उसको बदबू आती थी, बदबू आती थी, इसका मतलब है कि वो आ रहा था डेफिनेटली वहां से। और जब उस लड़की को मैंने नज़दीक से बात की तब उसके मुंह में भी बदबू थी, क्योंकि उसने चुल्ला किया नहीं था, कुल्ला किया नहीं था। अब दिस इज द एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस ही बता सकता है कि ऐसा कैसा होना चाहिए। दोनों भी निर्दोष है, और देन लोगों ने एक्सेप्ट भी किया कि ये दोनों निर्दोष है। तो ये बात होती है कि हमारे पूर्वज, हमारे ग्रैंडफादर्स, ये सिर्फ ग्रैंडफादर्स है ऐसा नहीं, एक्सपीरियंस उनको सिखाता था। उस जमाने में कोई BA LLB ये बातें होती नहीं थी, संस्कृत सिखाया जाता था। तब भी उन्होंने ये देख लिया था। ये जो बातें हैं ना, ये कहीं सिखाई नहीं जाती, अनुभव से आती है। हमारे घर में आजकल इकट्ठा हम सब एकत्र रहते हैं। एकत्र रहने के फायदे भी हमें बहुत कुछ मिलते हैं। मेरा बड़ा लड़का एक मोटर बाइक लेके गया था। धीरज, कल तूने मुझे एक मोटर बाइक दिखाई, मुझे बहुत खुशी हुई। इच्छा भी हुई थी कि मोटर बाइक से एक राइड कर ले, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अगर राइड करते वक्त कुछ गड़बड़ हो गई तो मोटर बाइक का नुकसान हो जाएगा। मुझे होने वाला तो हो जाएगा, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त धीरज की गाड़ी खराब हो जाएगी। तो मैं नहीं कहा। और हमने भी एक मोटर बाइक ली थी, मेरे बड़े लड़के ने बहुत बड़ी मोटर बाइक ली थी, इम्पोर्टेड मोटर बाइक। तो रात के 9 बजे उसको क्या समझ में नहीं आया, उसके जस्ट फैंसी आ गई और उसने कहा कि मैं जरा एक चक्कर मार के आता हूँ माँ। 15 मिनट गए, 20 मिनट गया, आधा घंटा गया, लड़का नहीं आ रहा। इतने में उसने मेरे छोटे लड़के को फ़ोन किया माँ ने। वो रात को एड्स की शूटिंग कर रहा था, तो उसने शूटिंग छोड़ दी। उस शूटिंग में उस वक्त नाना पाटेकर था। नाना पाटेकर एक ऐसा आदमी है कि जो डेट्स देने के बाद अगर उसके डेट्स आगे बढ़े तो आगे डेट देता नहीं। और ऐड के लिए सिर्फ 2 दिन लगते हैं, और 2 दिन में से आगे 1 दिन निकल गया तो आगे कर नहीं सकता काम, ऐड बंद हो जाती है। बहुत बड़ा नुकसान होता है हमें। तो वो नुकसान कुछ सोचा नहीं उसने, घर पे आ गया, गाड़ी निकाली, चारों तरफ देखने लगे। इतने में एक फ़ोन आ गया मेरे माँ को, मेरे वाइफ को, सॉरी, कि भैया ऐसा ऐसा एक नंबर है, ये किसका नंबर है? तो बोले ये मेरे बेटे का नंबर है। तो उसको एक एक्सीडेंट हुआ है और वो यहाँ बेहोश पड़ा है। बेहोश पड़ा है ऐसा कहते ही मैंने मेरी गाड़ी निकाली, वहाँ गया। लहून लड़का पड़ा था। इतने में मेरे वाइफ ने बेटे को भी बता दिया, वो भी आ गया। हमने उसको उठा के हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि आपने बहुत टाइम पे लेके आया, आधा घंटा अगर लेट हो जाता तो कुछ भी हो सकता था। ये तो ठीक है, ये तो फर्ज है सबका लेके जाना, लेकिन इसके बाद मेरे छोटे बेटे के लाइन से एड्स की डेट्स लगी थी। मेरा लड़का, छोटा लड़का, रात भर वहाँ जाके मेरे बड़े भाई के साथ सामने बैठता था, उसको ज़रूरत पड़ी तो,
उसने किसी को नहीं कहा कि नहीं डैडी आप नहीं जाएंगे, माँ आप नहीं जाएंगी, भाभी जी आप नहीं जाएंगी, मैं जाऊंगा, मैं बैठूंगा वहाँ। रात भर वहाँ बैठता था और सवेरे काम पे जाता था और अगेन आता था। ये एकत्र कुटुंब है, ये प्यार है, ये प्यार होना चाहिए भाइयों। प्यार से एकत्र कुटुंब ऐसा एक गठ बच जाता है। लेकिन आजकल जरा अलग दिखता है। अमेरिका में मैं गया था, बहुत बड़ा अमीर आदमी था, मिलीनियर, उसका मैंशन था बहुत बड़ा। तो दादाजी ने कहा, या मेरे ख्याल से डॉक्टर करार ने कहा, आई डोंट नो एग्जैक्टली हु ही सेड, कि मैंशन था बड़ा, लेकिन वहाँ उसने अपने बेटों की मेरी मुलाकात करवा दी, लेकिन उनके फादर और मदर की पहचान नहीं करवाई। तो मैंने बोला कि फादर और मदर यहाँ नहीं रहते क्या? बोले नहीं नहीं वो यहाँ नहीं रहते। वो कहाँ रहते हैं? तो बोला कि वो ओल्ड हाउस है यहाँ नज़दीक, बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल ओल्ड हाउस है, सब तरीके के वहाँ इंतज़ाम है, डॉक्टर मिलते हैं, नर्सेस होते हैं, सब कुछ होते हैं, वहाँ वो रहते हैं। पैसा, बेहद पैसा, मिलीनियर आदमी, लेकिन उसका बाप और उसकी माँ ओल्ड हाउस में रहती थी, वहाँ रहती थे। काफ़ी दफ़े देखा है हमने अमेरिका में कि लड़का 18 साल का होने के बाद बाप बोलता है कि बेटे अब अपना रास्ता तो देख, तो अपना एक काम कर। ये एक उनकी कल्चर थी, लेकिन हमारी कल्चर वैसी नहीं थी। हमने काफ़ी अंग्रेज लोगों की चीज़ें उठाई हैं। ये तो पहले तो कपड़े, हालांकि मेरे कपड़े तो इंडियन कपड़े हैं, लेकिन जितने अभी यहाँ देखता हूँ तो 80% तो अंग्रेजी कपड़े में, यानी सूट और बूट और इसमें हैं। कुछ बुरा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है। 6 गज की धोती या 9 गज की साड़ी पहनने से सलवार कमीज बहुत अच्छा है, अच्छाई ली है हमने, लेकिन साथ साथ बुराई भी आ गई। वो सबसे बुरी बात है। आजकल एकत्र कुटुंब बिल्कुल दिखाई नहीं देता, मुश्किल से दिखाई देता है। और उसके वजह भी एक है, इकोनॉमी। लड़के को अगर बम्बई में या पुणे में या नागपुर जैसे शहरों में, बड़े शहर में, या कोल्हापुर में या सातारा में कहीं भी अगर नौकरी मिल गई तो उसको तो वहाँ जाना चाहिए, नौकरी तो करना है उसकी, लेकिन वहाँ जगह मिलना बड़ी मुश्किल हो जाता है। अगर जगह नहीं है, 1 बेडरूम 1 हॉल किचन में रहते हैं वो, कैसे तो भी तो अपने माँ बाप को कैसे ले जाए? देहात में हो सकता है कि भाई एक कॉर्नर पर वो दोनों पड़े हुए हैं, माँ बाप दोनों भी बैठे हुए हैं, वहाँ सोते हैं, हॉल में सोते हैं, लेकिन बड़े शहरों में ऐसा होता नहीं, और मुश्किल भी है। ये इकोनॉमिकल चीज़ें हैं कि इकोनॉमिकल की वजह से ये अपने को प्यार होते हुए भी अपने माँ बाप से दूर रहना पड़ रहा है। मेरा एक दोस्त था, वो बम्बई में उसको जगह मिली, बड़ा खुश हो गया। तो एक दिन मैंने उसे पूछा कि यार तू आज दुखी दिखता है, क्या बात है? बोले मेरे पिताजी के आज जन्मदिन है और पिताजी यहाँ नहीं है। कहाँ है? तो देहात में है। किधर है? कोकण में, रत्नागिरी से भी आगे, कि वहाँ से जाने के लिए उसको कम से कम आधा दिन लगता। तो बोला कि कभी कभी ऐसी इच्छा होती है कि सैटरडे को शाम को निकले, पिताजी से मिले, माताजी से मिले और वापस आ जाऊं, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है ये। तो मैंने बोला एक काम कर बेटे, उनकी वो जगह बेच दे। मानेंगे? बोले जरूर मानेंगे, मैं आता हूं। और मैंने उनको समझाया कि देखो आपका बेटा आपसे बहुत बेहद प्यार करता है, लेकिन उसको आपको मिलने के लिए, आने के लिए वक्त नहीं मिलता। सैटरडे को आधा दिन उसको काम करता है
और आधे दिन के बाद वो वहाँ से निकला तो दूसरे दिन संडे को सवेरे पहुँचेगा, और संडे को इमीडिएटली रात को निकलना पड़ेगा क्योंकि मंडे को उसको ऑफिस पकड़ना है। एंड इट इज टायरसम, तो हो नहीं सकता। माता पिता दोनों भी समझदार थे, तो बोले क्या करें, ये जगह बेच दो, ये जगह बेच दो। बम्बई में ये पैसे से जगह बड़ी मिलने वाली नहीं, तो बम्बई के नज़दीक खोपोली में एक वृद्धाश्रम है, बहुत अच्छा वृद्धाश्रम है, वहाँ बैठ रहो। और ये जो पैसे जब मिले हैं वो तुम्हारे नाम पे तुम्हारा बेटा बैंक में रखेगा, और जितना खर्चा आएगा ये बेटा देखते जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात हो जाएगी कि हर सैटरडे को शाम को ये उसकी वाइफ, उसका पोता आपको मिलने के लिए आएंगे। संडे को वहाँ रहेंगे वो आपके साथ, और मंडे को अर्ली मॉर्निंग निकल के खोपोली से आने में कुछ तक दिक्कत नहीं होती, 2 घंटे पड़ते हैं तो आ जाएंगे वो। तो आपको भी खुशी मिलेगी और इनको भी खुशी होगी। इकोनॉमिकल क्राइसिस, दिस इज एन इकोनॉमिकल क्राइसिस कि जिसको अपने को फेस करना है आज। तो इसकी वजह से ये चीज़ें होती है। इच्छा होते हुए भी माता पिता को रखना नहीं चाहते, लेकिन जिनके पास 4 पैसे हैं, जैसे कि मेंशन था, लेकिन वो अपने माता पिता को नहीं रखना चाहते थे। दैट इज, वो जो बात है ना, वो क्रिमिनल है, उनको क्षमा बिल्कुल नहीं। गुरुजी ने अभी कहा जज अच्छा है, जज आपका काम कर रहा है, वकील ने अपना काम किया, पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन यहाँ कोर्ट में बैठे हुए 2 आदमी से मैं मैं बहुत नफरत करता हूँ, और उनको मैं ये कहता हूँ कि वो मेरे माँ बाप है जिन्होंने मुझे कभी सीधा रास्ता नहीं दिखाया। दैट्स करेक्ट सर जी, आप भी करेक्ट हैं, आपने बराबर बताया। अगर बचपन में माँ बाप ने अपने बेटों को सही रास्ता नहीं दिखाया, घर में रहते हुए भी बच्चे को बोला कि भाई उनको बोल लो कि मैं घर में नहीं हूं, तो वही चीजें वो आगे बढ़ के जाके सीखेगा। और एक कहानी थी श्रावण बाल की, आप सब जानते हैं। 28 युगे विटेवरी उभा विठ्ठल, श्रावण बाल। कहानी काफ़ी लोगों को मालूम होगी, या जिनको मालूम नहीं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, बहुत पुरानी बात है। 28 युग हो गए उसको। एक छोटे से झोपड़ी में श्रावण अपने माँ बाप का पांव दबाता था। इतने में भगवान श्री अपने विट्ठल जी वहाँ आ गए और बोले, श्रावण मैं आया हूँ। उसने देखा, अरे विट्ठल महाराज आप आए हैं? हाँ तो हाँ मैं आया हूँ, बात करना चाहता हूँ, ज़रूर कीजिए, लेकिन पहले मैं मेरी माँ और बाप को सुलाता हूँ। पैर दबाने के बाद वो सोते हैं, जब तक वो सोए नहीं तब तक मैं आपके साथ बात नहीं करता हूँ। तो ये ईंट लो, इसके ऊपर आप खड़े रहो। अपनी बात है ये अपना कल्चर था। 28 युग हो गए, वो विट्ठल उस वीट पे खड़ा है। युगे निकल गई होंगी, उसके बाप मर गए होंगे, श्रावण नहीं सहा, कोई नहीं होगा, मगर एक एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया कि माँ बाप के पांव दबाते वक्त, माँ बाप के सेवा करते वक्त अगर भगवान भी वहाँ आ जाए तो भगवान से ज़्यादा माँ बाप की सेवा आप कीजिए, वो आपको ज़्यादा फायदेशीर है। तो ये अपनी कल्चर है साहब। इस कल्चर को हम भूल गए हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिस डॉक्यूमेंट्री का नाम था शादी और डिवोर्स। म्हाड़ा सब लोगों को मालूम है, बम्बई में म्हाड़ा बहुत बड़ी एक संस्था है। वहाँ एक ही रूम में एक टेबल के ऊपर रजिस्ट्रेशन होता है शादी का, और नज़दीक वाले टेबल में रजिस्ट्रेशन होता है डिवोर्स का। नज़दीक है। तो मैंने पूछताछ करने के लिए गया वहाँ,
तो उस आदमी ने जो मुझे बताया तो मुझे बड़े ताज्जुब लगा। उसने बोला, देखो रमेश, यहाँ अगर 25 यानी शादी के यूनिट आते हैं, अर्ज आते हैं, एप्लीकेशंस आते हैं, तो कम से कम 30 एप्लीकेशन डिवोर्स के आते हैं। आजकल ये हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि डिवोर्स जो हो रहे हैं वो शादी के बाद 3 और 5 के साल के बीच वाले होते हैं। उसके बाद 10 साल तक शादी की कोई ज़्यादा डिवोर्स की बातें नहीं आती, लेकिन 10 या 12 साल के बाद अगेन डिवोर्स के एप्लीकेशंस आते रहते हैं। और 50 साल के बाद तो डिवोर्स की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। तो मैंने वो कैसे किया? तो बोले ईगो। आजकल लड़कियां और मर्द दोनों भी कमाते हैं। अगर लड़की के पगार ज़्यादा हो या उसकी सत्ता बड़ी हो उसके ऑफिस में, और दूसरा मर्द अगर जहाँ काम करता है उसकी उतनी पगार ना हो, उसकी उतनी हैसियत ना हो, उसका अधिकार ना हो, तो घर में एक अजीब सी कशमकश शुरू हो जाती है। और वो होते हैं ईगो। वाइफ को लगता है कि मैं इतनी कमाती हूँ, मैं ऐसी करती हूँ, मैं रात भर काम करती हूँ, दिन भर काम करती हूँ, ये क्या करता है, तो इसको तो इतना ही पगार नहीं है। और पति को लगता है कि साला मैं दिन भर काम करके आता हूँ और मुझे अधिकार बजाने के लिए सिर्फ एक ही जगह है, न मेरी वाइफ है। तो उसको मैं कहता हूँ पानी ला, तो वो नहीं लाते पानी। उसको मैं कहता हूँ कि मेरे लिए कुछ मेरी बेड अच्छी तरह से कर, वो नहीं करती। दोनों का ईगो है, दोनों का ईगो है वो। और वो ईगो शादी के बाद, लव मैरिज होते हैं सबके, शादी के बाद 4 और 5 साल के बीच में होते हैं। आप पूछेंगे कि भाई जब हम एकत्र कुटुंब की बात कर रहे हैं तो ये डिवोर्स की बात क्यों कर रहा है? रमेश देव पागल है कि वो डिवोर्स की बातें क्यों कर रहा है? मैं इसलिए कह रहा हूं आपको कि शादी ये तो मूल है। ये जो एक बड़ा वृक्ष बनने वाला है एकत्र कुटुंब का, उसका मूल कौन सा है? शादी है। और शादी क्यों नहीं टिक रही है आजकल? ये इसके वजह से ये है। अरे झगड़े तो होते हैं सबके। हमारे शादी को 51 साल हो गए, बड़े धूमधाम से शादी हमारे बेटों ने की। मेरे सर के ऊपर मेरे पोते ने, मेरे दोस्तों ने, मैं कहता हूँ कि दिलीप कुमार के, सॉरी, अमिताभ बच्चन, हेमा जी, ये सब लोग आए थे। और साथ साथ पॉलिटिकली लोग भी आए थे। सब लोगों ने बहुत मुझे ये किया। तो उस वक्त अमिताभ बच्चन ने बोला कि देखो रमेश, सीमा जी ने रमेश को 51 साल झेला। तो हेमा जी, सीमा जी को मैं बधाई देता हूँ। हेमा जी खट करके खड़ी हुई, बोले नहीं, रमेश ने भी सीमा को झेला। तो दोनों को एक में को झेलना पड़ता है। सर आपको क्या लगता है कि हमारे में झगड़े नहीं हुए होंगे? आप काफ़ी लोग सब शादीशुदा हैं, आप लोगों में क्या झगड़े नहीं हुए होंगे? झगड़े तो होते ही, और झगड़े तो होने ही वाले। 2 बर्तन तो एक में को टकराएंगे ही। और झगड़े के बगैर मज़ा भी नहीं है ज़िंदगी में। सिर्फ प्यार 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 हो नहीं सकता सर। सिर्फ आप मिठाई खाता है, मुझे मिठाई बहुत पसंद है। कल की मिठाई बड़ी अच्छी थी यार, सवेरे भी खा के आया हूँ मैं। हाँ धीरज, बहुत अच्छी मिठाई थी। खास तौर से आपको मैं बधाई देता हूँ, बड़ी प्यारी मिठाई है। मैं बहुत मिठाई खाता हूँ। तो लेकिन हर रोज़ अगर सिर्फ मिठाई खाने लगा ना, तो ऐसे एक दिन आएगा कि मुझे लगेगा कि नहीं यार, आज मुर्गी चाहिए अपने को, ये मिठाई बहुत हो गई। वैसे ही है, सरीखा प्यार करने के बजाय बीच में कहीं झगड़े होने चाहिए। हमारे में भी झगड़े हुए थे, बहुत झगड़े हुए थे। लेकिन मैंने एक बात कही, सोची थी। एक बार मैंने बहुत बड़ी गलती की। गलती तो गलती होती है।
मिसेस को मालूम पड़ा कि इस बदमाश ने बहुत गलती की, गुस्से में आ गए। जैसे कि मैं घर में आ गया तो था बम्बार्डमेंट शुरू की उसने मेरे पे। तो चुप रहा मैं मुंडी नीचे नहीं क्या कर, गलती थी यार, क्या बोले, चुप रहा। अब मेरे बेटे अजिंक्य और अभिनय, उसकी वाइफ, अभिनय की वाइफ, अजिंक्य की वाइफ, वे सब तरफ देख रहे थे। तो अजिंक्य ने बोला कि पिताजी आप बात क्यों नहीं करते, उसको जवाब क्यों नहीं देते? नहीं बोला, जब वक्त आएगा तब मैं जवाब दूंगा, अभी नहीं। तो उनके दिल में मेरे लिए बहुत इज्जत बढ़ गई कि देखो माँ बाप को भाड़ कैसे भी बोल रहा है, गाली भी दे रही है, ये भी कर रहा है, और बाप बेचारा गरीब चुपचाप सुन रहा है। सुना मैंने, थक गई बेचारी गालियां दे के मुझे, झगड़ा दे के, और गुस्से में धा करके विदाउट खाता अपने बेडरूम में गई। धीरे से मैं भी बेडरूम में गया, दरवाजा बंद कर दिया, खटकनी लगा दी, और धीरे से मैंने बोला कि देख तूने बहुत कुछ बोला, वो सब सही है, मैंने गलती की, लेकिन अभी उसके पश्चाताप होता है, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। और करके उसके पांव पकड़े। अरे हम कितने लोगों के पांव पड़ते हैं, गलती नहीं होते हुए भी सॉरी। अपने बॉस के सामने कितने लोग हैं, मुझे एक यहाँ कोई ऐसा हाथ बता के दिखाइए कि अपने बॉस के सामने उसने सॉरी नहीं कहा, गलती नहीं होते हुए सॉरी नहीं कहा। गलती नहीं होते हुए भी अपने बॉस के सामने या किसी के सामने सॉरी सर बोलना पड़ता है। तो ये तो मेरी अर्धांगी है, बेटर हाफ है, उसके सामने दम बंद दरवाजे के अंदर बेडरूम में सॉरी बोलने में किसका बाप का क्या जाता है। सब बेटे तो मुझे कह रहे थे कि वाह क्या बाप है अपना, सब सुन लेता है, और क्या माँ है, खामखा खैट करती रहती है। लेकिन अंदर क्या हुआ ये किसी को मालूम नहीं। ये आज पहली बार आपको बता रहा हूं। वो इसलिए बता रहा हूं कि अगर कहीं गलती से आपके हाथ से गलती हुई और आपकी वाइफ अगर आपको बोलने लगी तो आप चुपचाप सह लेना, और उसके बाद दरवाजा बंद करके खटिकड़ी लगा के उसको माफी मांगना, कहना कि तू तो माफी की देवता है, तू माफी नहीं करेगी तो कौन माफी करेगा मुझे, तू तो मेरा अर्धांगी नहीं है, तू तो मेरी बेटर हाफ है। देख जगदम्बा है, जगदम्बा के जगह मैं तुझे देखता हूं कभी कभी। ये सब सुनने के बाद वो बोली नहीं मैं जरा ज्यादा बोल गई, सॉरी। तो भैया झगड़े तो होने वाले, झगड़े होने भी चाहिए, लेकिन उसको सुलझाने की भी एक रीत होती है। 51 साल में काफी झगड़े हुए हमारे। मैं बदमाश था, अभी नहीं, अभी क्या बदमाशी कर सकता हूँ, 89 साल में क्या बदमाशी कर सकता हूँ, क्यों मल्होत्रा साहब कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते? हाँ अच्छा समझ गया, सॉरी मल्होत्रा साहब बोल रहे हैं कि मैं भी हूँ। नहीं दादाजी को जाना है तो मेरी भाषा ज़्यादा बढ़ रही है तो मैं शॉर्ट कर लेता हूँ। तो भाई साहब एकत्र कुटुंब तो है, होना चाहिए, लेकिन तकाजा आजकल के जिंदगी का तकाजा देखने के बाद, इकोनॉमिकल स्टेटस देखने के बाद एकत्र कुटुंब में रहना बड़ी मुश्किल की बात होती है। अलग अलग रहो मगर प्यार से रहो। दिवाली दशहरे के दिन अपने बाप को बुला के लेके आओ, छोटा मकान हो तो हॉल में उनको सुला दो, या 1-4 दिन के लिए उनको बेडरूम दे दो और आप बाहर हॉल में सुला दो, लेकिन उनको प्यार दो। उनको सिर्फ प्यार ही नहीं,
तो उनको टाइम दो। खैर, हमारे दादाजी को जाना है, मुझे ज़्यादा बोलने की अभी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं लगती, जो कुछ बोलना है वो सब खत्म हो गया। तो आपकी इजाज़त लेता हूँ। मल्होत्रा साहब, आपने मुझे इतनी बड़ी इज्जत दी, इसलिए मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। मेरी वाइफ नहीं आई, इसलिए उसने हाथ जोड़ के आपको कहने के लिए बताया है कि मेरे पोती जो है वो थोड़ी स्पेशल चाइल्ड है। 11 साल की पोती है। स्पेशल चाइल्ड के अंग में ताकत बड़ी होती है। हम दोनों निकले, लिफ्ट में बैठने ही वाले थे। लिफ्ट में बैठने के लिए एक क्या बोलते हैं उसको, एक सीढ़ी उतरनी पड़ती है हमारे लिए, और उसी वक्त उसने जोर से उसको धक्का मारा पीछे से, विदाउट नोइंग। बेचारे को क्या मालूम है यार, स्पेशल चाइल्ड है। उसने जोर से धक्का मारा मेरी मिसेस को। मिसेस एकदम ऐसी होके धाड़ करके गिर गई। डॉक्टर की तरफ लेके गए, सब कुछ हुआ, क्रैक नहीं है, लेकिन उसके नाक को बहुत जबरदस्त मार बैठे और यहाँ पट्टी लगी। तो उसने मुझे बोला कि ऐसे पट्टी में मैं लोगों के सामने नहीं जाना चाहती, क्योंकि नाक ये सबसे बड़ी बात होती है। लोग कहते हैं ना, हमारे हिंदुस्तान में होता है कि नाक है, अरे इसके नाक है, क्या क्या बात है यार। तो मैं ऐसे इसमें नहीं आती, तो मैं नहीं आती हूँ, इसके लिए उसके तरफ से मैं हाथ जोड़ के आपको क्षमा कर रहा हूँ। उसे क्षमा करो, ऐसे मैं आपको विनती करता हूँ। जय महाराष्ट्र, जय भारत। Thank you. Thank you. I will now request Dadaji to please honor our chief guest with a small token of our love. आप बैठिए। नहीं, मैंने आपको
नहीं नहीं, अभी हो गया जो मेरे ख्याल से आवाज़ तो सुनाई दी होगी आपको सबको, क्योंकि भाई पीछे वाले से कब पूछता हूँ, मैंने जो कुछ बोला वो सुनाई दिया, दिया ना? चलो यार, ड्रामा में काम करने वाला आदमी हो यार। और ये अभिनय है। अभिनय आज एशिया में बेस्ट एड डायरेक्टर करके हैं पूरे एशिया में। अभी जो उन्होंने कहा था पटेल साहब ने कि कांस में गोल्ड मेडल, गोल्ड लायन, इंग्लैंड में गोल्ड ईगल और कायरो में गोल्ड पिरामिड, ये 3 एड्स में सबसे बड़े ये होते हैं, मैंने क्या बोलते हैं उसे, अवार्ड्स होते, काफी लोगों को मिले हैं, लेकिन एक ही साल में 3 अवार्ड्स सिर्फ को मिला है, और वो है मेरा लड़का अभिनय देव, एक ही साल को उसको मिला है। तो क्या हुआ, राज एक ही है, पिता नहीं, कभी स्मोक नहीं करता। वो वजह एक थी कि मेरे बहन ने वो कटोरा दिया था। जैसा कृष्ण ने एक थाली दी थी, तो थाली दी थी तो उस थाली में से कभी अनाज कम नहीं होता था, वैसे मेरे बहन ने वो कटोरा दिया था और वो उसने बहन ने बनाया था, उसके वजह से उसमें और भी मैं खाता ना तभी कम हो जाता, निकलता ही निकलता। खैर, अरे इसके पहले कल रात को इनके घर में से एक बहुत बड़ी, बहुत ही अच्छी चीज चुराई नहीं है, मांग के ली है, और वो है मिठाई। अरे क्या शिरा बना था यार, शिरा बनाया था उन्होंने दिनेश के घर में, शर्मा, और मैंने बेशरम के माफिक उनसे कहा कि ये शीरा थोड़ा बांध कर दोगे मुझे, मैं सवेरे खाऊंगा और वाइफ को भी दूंगा, तो मैं वाइफ के लिए भी रखा है थोड़ा। हाँ, बड़ा ऑनर मुझे मिला है, आज तक जितने भी ऑनर मिले थे उससे बड़ा ऑनर ये आज है कि मैं दादाजी को शाल दे रहा हूं। दादाजी सच्ची ये बहुत बड़ा ऑनर है, अरे हाथ नहीं, मेरे सर के ऊपर। I feel grateful to you for the shawl that you have given to me. I feel tempted to keep it to myself. But I remember that a man needs no more than 2 shawls, one for wearing, one for washing. I have already more than 2 shawls. Therefore, I will leave this shawl with you with a request. Give to some needy person. With a request that you will kindly pass it on to some old woman who is in need of a shawl. She will bless you, she will bless me, दादाजी, and she will bless दादाजी, you. अगर आपको किसी को देना है तो ये शाल मुझे दीजिए। Nothing better, nothing better. ये सबसे बड़ा ऑनर मैं समझता हूँ कि आपने मुझे शाल दी। With the shawl goes the bouquet of flowers. I must not keep it with myself.
I will pass it on to you. Thank you. Thank you. And a few. And a few books. The garland should go to Mr. Malhotra. I need the blessings of you all. I came here only to seek your blessings. Thank you. Yeah. तोहफा मिला है और वो ये है, ये संभाल के रखूंगा और ये मेरे बेटे को पास ऑन करूंगा कि दादाजी का तोहफा तू पहन, तुझे सक्सेस मिलेगा। बेटे के बेटे को भी ये तोहफा मिलेगा, ये तोहफा रहेगा, तोहफा रह। It has been a joy and a blessing to meet you. I seek your blessing. Ladies and gentlemen, there will be a 15-minute tea break, after which we'll assemble over here to felicitate some ideal parents and have two panel discussions. I request you all to please come back after having tea, which is served downstairs in the veranda.